ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, શુભ પ્રભાત. કેમ છો બધા? મજામાં બાળ મિત્રો? કાલે આપણે શું જોયું હતું ગુજરાતીમાં? યસ, આપણે કાલે કવિતા જોઈ હતી ને, શરીરના અંગોના નામની કવિતા જોઈ હતી ને. કોને યાદ છે? મમ્મીને. રાહુલ એની મમ્માને કહેતો હતો કે મમ્મા જો મારું સરસ મજાનું નાક, મારી સરસ મજાની આંખો, જીભ, વાળ, હાથ, પગ બધા વિશે રાહુલ એની મમ્માને કહેતો હતો ને. યસ. સો આજે આપણે ગુજરાતીમાં ભણવાનું છે ચ, છ, જ અને ઝ, જે આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? જે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ, હે ને? તો આપણે રિવિઝનમાં પહેલાં શું શીખી ગયા હતા? રિવિઝનમાં આપણે શીખી ગયા હતા ક, ખ, ગ અને ઘ, રાઈટ? આપણે રિવિઝનમાં શીખી ગયા હતા ક, ખ અને ઘ. સો કનો સ્પેલિંગ શું હતો? કે એ ક, રાઈટ? કનો સ્પેલિંગ શું હતો? કે એ ક. પછી ખનો કે એચ એ ખ, ગનો જી એ ગ અને ઘનો જી એચ એ ઘ. આજે આપણે કરવાનું છે ચ. ચલો, તો ઘણા નવા સ્ટુડન્ટ્સ પણ એડ થયા છે આપણા ગ્રુપમાં. સો નવા સ્ટુડન્ટને પણ રિવિઝન થઈ જશે એક વખત, અને આપણા ઓલ્ડ સ્ટુડન્ટ્સને પણ રિવિઝન થઈ જશે. તો બધાએ ધ્યાનથી જોવાનું છે. જેમ કે મેં તમને गया लेक्चर में सिखवाड़ी थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना शेप्स के बारे में. हाफ सर्कल, स्लैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट? यू शेप, एल शेप, है ना? हाँ, लास्ट जो हमने शेप सीखे थे उसमें 2 शेप मेरे ख्याल से रह गए थे, और वो कौन से थे? तो एक सीधा एल, एक उल्टा एल, और इस तरह के शेप्स रह गए थे, राइट? लेट्स चेक इट हियर. सीधा एल, देन उल्टा एल. ठीक है? राइट? ये जो 4 शेप है वो चारों शेप रह गए थे, है ना? रह गए थे ना. तो ये चारों शेप 1, 2. ठीक है, चलो हम कलर चेंज करके लिखते हैं. फाइन, हम क्या करेंगे? कलर चेंज करके लिखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन हो नहीं. ठीक है? फर्स्ट वन, चलो कौन सा लेंगे? रेड कलर लेते हैं. ठीक है? फर्स्ट वन इज़ द रेड कलर. ठीक है? ये हमने ले लिया उल्टा एल. सेकेंड वन इज द ग्रीन लेते हैं. ठीक है? ये ले लिया हमने इस तरह का एल. फाइन. अब थर्ड हम कौन सा लेंगे? ब्लू तो आ गया. चलो ब्लू के अंदर हम वाइट ले लेते हैं. फाइन. सो फिर इस तरह का शेप रह गया, है ना? और दूसरा येलो ले लेते हैं. तीसरा, चौथा इस तरह का. सो ये जो 4 शेप है वो लिखने और प्रैक्टिस करने हमारे रह गए थे, राइट? सो ये चारों शेप भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये चारों शेप की आपको प्रैक्टिस करनी है ना? ये चारों शेप की क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड आपकी होमवर्क बुक में भी लिखना है, राइट? आपकी होमवर्क बुक में भी आपको ये लिखना है. फाइन स्टूडेंट्स. सो चलो आज हम शुरू करते हैं. ये चारों शेप आपको लिखने हैं, एक बार ध्यान से देख लो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फाइन. आप इस तरह से लिखो, चाहे इस तरह से लिखो, किसी भी तरह से आप अपनी तरह से लिख सकते हो, पर ये चारों शेप आपको अपनी होमवर्क बुक में लिखने हैं. फाइन. ओके. હવે ચ કોનો બને? ચ ચકલીનો બને, હે ને? ચ ચકલીનો બને, ચ ચમચીનો બને, ચ ચરખાનો બને. પછી બીજો શેનો બને? ચ ચંદા મામાનો બને, હે ને? પછી ચ
ચ ચોકડીનો પણ બને, પછી ચ ચોગડે ચારનો બને, એને બને ને. સો ચ, તો ચ લખવા માટે આપણે હાફ સર્કલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. લાઈક you have to take a one half circle and attach with your second half circle, then standing line, right? This is cha. Fine, this is cha. And cha means C-H-A, cha. Cha means C-H-A, cha. And cha means C-H-A, cha. Right? Cha means C-H-A, cha. C-H-A, cha. Cha means C-H-A, cha. देखो ये हमने च लिखा और उसका स्पेलिंग C-H-A, च. च मीन्स C-H-A, च. च मीन्स C-H-A, च. है ना स्टूडेंट्स? च का स्पेलिंग क्या होगा? C-H-A, च. ओके, च का स्पेलिंग क्या है? C-H-A, च. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन सा है? यस, छ. छ से क्या होता है? छ से छतरी होती है. छ से छ बनता है. देन क्या बनता है छ से? सोचो. जो भगवान અહીંયા પાઘડીમાં લગાવે ને એને કહેવાય છોગું. એ પણ છ થી બને. પછી કોઈનું નામ હોય, એનું નામ હોય છગન, તો છગનનો છ. પછી છડી, એને ભગવાન જે લાયા હાથમાં લે સ્ટીક, એને કહેવાય છડી. પછી સોચો સોચો, છ ઉપરથી કયા શબ્દો બને? સોચો. છીંક. હા, પછી પછી કયા બને? છત્રી, છડી, છોગું, છીંક, છગન, છ. કેટલા બધા શબ્દો બને છે, હે ને? તો આજે આપણે છ ભણીશું, બરાબર? છ ભણવા માટે શું લખવાનું છે? એક હાફ સર્કલ, પછી બીજું હાફ સર્કલ લેવાનું અને અહીંયાથી બંધ કરવાનું. એને અલગ અલગ શેપ્સ આપણે શીખ્યા છીએ ને, રાઈટ? તો આ બધા શેપ્સ આપણને કેટલા યુઝફુલ છે હવે ખબર પડે છે ને. ઘણી વખત આપણે લખવાનું અઘરું પડે, પણ આપણે જ્યારે શેપ શીખ્યા હોય તો બહુ ઇઝી થઈ જાય. લાઈક એક હાફ સર્કલ, દેન બીજું હાફ સર્કલ અને અહીંયાથી બંધ. ઇટ ઇઝ અ છ. વાવ, ઇટ્સ સો ઇઝી ના? યસ, બહુ જ ઇઝી છે. સો તો આ તો બહુ જ ઇઝી છે છ લખવાનું. હવે છનો સ્પેલિંગ લખીએ. છ અને ચનો સ્પેલિંગ ઓલમોસ્ટ મળતો આવે છે, પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે છનો સ્પેલિંગ લખાય ત્યારે તમારે CHH કરવાનું છે. CHH. CHH छ. क्या करना है हमें? CHH छ. ओके, सो हमें क्या करना है बच्चों? जब हम छ लिखेंगे हमें CHH छ लिखना है. क्या करना है? CHH छ. ओके, जैसे च लिखते हैं, जब हम च लिखते हैं तो च का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? CHA च. CHA च. एंड जब छ का स्पेलिंग लिखे तो CHH छ. ओके, CHH छ. फाइन, चलो. सो च और छ का स्पेलिंग आपको समझ में आ गया. च का CHA च एंड CHH छ. राइट, अब ये तो छ का स्पेलिंग हो गया, राइट? अब हम देखेंगे छ के बाद क्या आता है. छ, च, छ, ज. अरे बाप रे, ज से जलेबी. ज से क्या होता है? जलेबी. ज से क्या होता है? जलेबी. वाह, आई लाइक जलेबी. પછી જથી જમરૂખ પણ થાય, હે ને? જથી બીજું શું થાય? જમરૂખ. જમરૂખ બી મીઠું મીઠું હોય, સરસ, ખાવાની બહુ જ મજા પડે, હે ને? તો જ લખવા માટે
આ રીતના કરવાનું, બરાબર। આ શેપ આપણે શીખ્યા અને આમ સ્લેન્ડિંગ લાઈન પણ શીખ્યા છે, બરાબર। તો જ્યારે આ શેપ લખીએ અને પછી ત્યાંથી આમ સ્લેન્ડિંગ લાઈન કરી દેવાની અને અહીંયાથી બંધ કરી દેવાનું, બરાબર। જ્યારે આપણે આ શેપ શીખ્યા ને, આમ શીખ્યા ને, તો આપણે અહીંયાથી ઊભી લાઈન કરી દેવાની સ્લેન્ડિંગ લાઈન અને અહીંયાથી એને હાફ સર્કલ કરીને બંધ કરી દેવાનું। જો इट्स सो ईजी, કેટલું ઈઝી છે હે ને। जो તમે મારા શીખવાડેલા शेप्स सीखा जो आपने अगर मेरे सिखाए हुए सारे शेप्स अच्छे से सीखे हैं तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और करने में भी बहुत मज़ा आएगा, राइट, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या बनाया, ज, क्या बनाया, ज, हमने क्या बनाया, ज बनाया। ज से क्या बनेगा, ज से जलेबी, ज से जमरूख, राइट। जनी जलेबी, ज थी जमरूख, बे शब्द बने छे। शुं बने छे, बे शब्द बने छे, राइट। ज थी जलेबी बने ने ज थी जमरूख पण बने। चलो हवे आपणे एनो स्पेलिंग जोवानो छे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ज, ज का स्पेलिंग क्या होगा। सो ये हमने लिख दिया ज और ज का स्पेलिंग बनेगा जे ए ज, ज का स्पेलिंग बनेगा जे ए ज, राइट। ज का स्पेलिंग बनेगा जे ए ज, फाइन, जे ए ज, जे ए ज, क्या बनेगा, जे ए ज, ओके। अब जे ए ज से भी हम स्पेलिंग बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ स्पेलिंग बनाना सीखा था, है ना, ऐसे ही आज हम कुछ स्पेलिंग बनाना सीखने वाले हैं। बट उसके लिए हम पहले जितने लेटर्स है वो उसका स्पेलिंग आज देख लेंगे, उसके बाद हम स्पेलिंग बनाएंगे, फाइन। तो ये बन गया जे ए ज। अब हमारा आएगा ज, क्या आया ये, ज, ज से जबलू, ज थी ઝરણું, ज थी जबलू, ज थी ઝરણું, ओके। सो आ ज लखवा माटे आपणे शेनो उपयोग करीशुं, हाफ सर्कल, एक सेकेंड, हाँ, हाफ सर्कल, बीजू हाफ सर्कल अने स्लेंडिंग लाइन, राइट, है ने। આપણે એક હાફ સર્કલનો ઉપયોગ કરીશું, પછી બીજા હાફ સર્કલનો અને સ્લેન્ડિંગ લાઇનનો ઉપયોગ કરીશું, રાઈટ। સો આ રીતના આપણે બનશે ઝ, એને આ રીતના આપણું બનશે ઝ। શું બનશે, આ રીતના ઝ બનશે, બરાબર। સો અગેન ચલો જોઈ લો, એક હાફ સર્કલ, દેન બીજું હાફ સર્કલ એન્ડ સ્લેન્ડિંગ લાઇન, આ બની ગયો આપણો ઝ, ઓકે, બરાબર છે ને, ओके। तो जे बाळ मित्रों ने ज लखवामां तकलीफ थाय छे ते ध्यानथी जोई लो। एक वखत एक हाफ सर्कल, पछी बीजू हाफ सर्कल अने स्लेंडिंग लाइन, एम करीने बनी जशे ज। शुं बनी जशे, ज, फाइन। आ आपणो बनी गयो ज। हवे आपणे जोईशुं ज नो स्पेलिंग। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ज। सो एक आ ज लखी दीधो, एक मिनिट, इट्स लिटल बिट रॉन्ग। सो एक हाफ सर्कल, देन बीजू हाफ सर्कल एंड स्लेंडिंग लाइन, दिस इज ज। अने ज नो स्पेलिंग थशे Z A Z ऑब्लिक, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो J A, बराबर, J A भी हो सकता है और Z A भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जे ए भी हो सकता है और जेड ए भी ज हो सकता है। जैसे कि हम जू, जू लिखते हैं तो उसमें ये वाला ज यूज़ होता है। जू लिखते हैं तो कौन सा ज यूज़ होता है, ये वाला ज यूज़ होता है ना। और कोई और स्पेलिंग के बीच में अगर प्रोटोजुआ है ऐसा कुछ यूज़ होता है, तो और कोई दूसरा स्पेलिंग जब यूज़ होता है तो उसके बीच में ये वाला जे कभी कभी यूज़ हो जाता है, राइट। तो जैसे कि हम कोई गर्ल का नाम लिखते हैं लाइक ज़लक, ज़ील, तो उसमें हमेशा ये वाला ही ज यूज़ होता है, राइट। जेड ए ज वाला ज यूज़ होता है।
राइट। सो ये हमने देखे हमारे आज के लेटर्स। आज हमने कौन कौन से लेटर्स देखे? वर्णमाला के पहले तो देखा च, एक सेकेंड, पहले हमने देखा च, CHA च, देन छ, CHHA, सॉरी, यहाँ से लिखते हैं च, CHA च, देन छ, CHHA छ, ज, JA j, right, and z, that is oblique JA j, right। तो हमें ये हमारे जो स्पेलिंग है वो हमें लर्न एंड राइट करने हैं हमारी होमवर्क बुक में, राइट। ये जो सारे स्पेलिंग्स है हमें लर्न एंड राइट करने हैं हमारी होमवर्क बुक में, राइट। चलो अब हम कुछ थोड़े से स्पेलिंग बनाना भी सीखते हैं, राइट। तो हम कुछ स्पेलिंग ऐसे सीखेंगे जो इजी हो, फाइन। जैसे कि हम सीखेंगे च से सीखेंगे, एक सेकेंड, चलो, राइट, चलो, चलो, राइट, चलो, ચોખ। હવે આનો આપણે સ્પેલિંગ લખવાનું છે, બરાબર। હવે લનો સ્પેલિંગ શું થાય? LA થાય। તો આપણે શું કરીશું? CHAL, ચલ, રાઈટ। એન્ડ ચક, તો CHAKH, ચક, રાઈટ। આવી રીતના આપણે સ્પેલિંગ બનાવવાનો છે। ચનો તો આખો સ્પેલિંગ આવશે, ચનો બધી જગ્યાએ આખો આવશે। ખ છે, લ છે, તો LA લ થાય કે HA ખ થાય, તો આપણે લાસ્ટમાં એ લખવાનો નથી। કેમ? કારણ કે પાછળ કાનો એટલે કે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન છે નહીં, એટલા માટે। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આવી રીતના આપણે ચલ અને ચકનો સ્પેલિંગ જોયો। ચલો આપણે બીજો છ ઉપરથી સ્પેલિંગ જોઈશું, બરાબર। હવે છ છે, છ ઉપરથી કયો સ્પેલિંગ બની? સાદા અક્ષરવાળો છ ગ ન, રાઈટ। છ ગ ન, રાઈટ। હવે છનો સ્પેલિંગ છે તો શું આવશે? CHHA। ગનો સ્પેલિંગ GA અને નનો ઓનલી એન, CHHAGAN, છ ગ ન, રાઈટ। કેટલો ઇઝી છે। જ્યારે તમે આવી રીતના સ્પેલિંગ બનાવતા શીખશો તો બહુ ઇઝીલી તમને આવડી જશે, ફાઇન સ્ટુડન્ટ। CHHAGAN, છ ગ ન, ફાઇન। તો આ આપણો છગનનો સ્પેલિંગ થઈ ગયો। હવે આપણે બીજો એક સ્પેલિંગ પણ જોઈ લઈએ। ચલો નેક્સ્ટ જ ઉપરથી જોઈએ। જ, તો જ ઉપરથી કયો બને? જગ, એક સેકન્ડ, જગ, ત, જગ, પછી જમ। આ બધા સ્પેલિંગ આપણે શીખી ગયા છે ને। જનો, ગનો, તનો, મનો પણ શીખી ગયા છે, રાઈટ। તો જ ગ ત, જનો JA, ગનો GA અને તનો T, JAGAT, જગત, દેન જગ। તો હવે જગ, જગનો જ્યારે સ્પેલિંગ લખીએ છીએ ત્યારે યાદ રાખજો
જે એ નથી યુઝ થતું, પણ JUG યુઝ થાય છે. JUG જગ, JUG જગ યુઝ થાય છે, રાઈટ. દેન જમ, JAM, રાઈટ, JAM જમ, જમ. અને એને ઇંગ્લિશ પ્રનાઉન્સ જેમ થાય છે, રાઈટ, ઇંગ્લિશ પ્રનાઉન્સ જેમ થાય છે, પણ જમનો સ્પેલિંગ JAM થાય છે. તો બધાની પાછળ તમે જોયું એ લાગતો નથી. કેમ? તો જ્યારે આ સ્પેલિંગ આપણે બનાવીએ છીએ તો એની પાછળ એ લાગતો નથી. લાસ્ટમાં અગર સ્ટેન્ડિંગ લાઇન હોય તો જ એ લાગે છે, રાઈટ. જેમ કે જગા, તો તો JAGA જગા, એન્ડ જગ છે તો JUG જગ. फाइन. एवी रीतना घना स्पेलिंग एवा पण बने छे. कुछ स्पेलिंग ऐसे भी बनते हैं कि जिसमें JA आता है बट प्रोनाउंस की वजह से उसका ए का यू हो जाता है, या ए का ओ हो जाता है, या ए का ई, या ए का आई भी हो जाता है, राइट. तो ऐसे भी कई स्पेलिंग आते हैं जो हम आगे देखेंगे. अभी हम सिंपल स्पेलिंग किस तरह से बनाना है वो सीख रहे हैं, है ना. सिंपल स्पेलिंग किस तरह से बनाना है वो सीख रहे हैं. तो आप लोगों को भी इस तरह से स्पेलिंग बना के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. सिंपल 2 लेटर्स वर्ड आपको लेने हैं और उसके स्पेलिंग बनाने का ट्राई भी आपको करना है. ये प्रैक्टिस आपको आगे जाके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है. फाइन स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट दिस इज ज. सो हम इससे लिखेंगे ज ल क. ज़लक मतलब ज का Z ए ज, ल का L ए ल, एक सेकेंड, L ए ल और क का के, राइट. ZALAK ज़लक. फाइन. ZALAK ज़लक होता है. ओके स्टूडेंट्स. सो ये अगर हम जू लिखते हैं, राइट, जू, पर हमने ये ऊ की मात्रा वाला देखा नहीं है, है ना. तो इसका स्पेलिंग हम बनाना हमें थोड़ा हार्ड लगेगा. सो अभी हम इसे सिंपल वर्ड ही स्पेलिंग बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो इस तरह से आज हमने स्पेलिंग बनाना सीखा. ये भी आपको अपने होमवर्क बुक में च छ ज ज, राइट, CH च, CHH च, JA च एंड ZA ज. इस तरह से आपको भी स्पेलिंग के साथ लिखना है अपनी होमवर्क बुक में 5 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. ठीक है, 5 टाइम्स. ओके. ये आपको कंप्लीट करना है ना, और उसको लर्न भी करना है. फाइन स्टूडेंट्स. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको लर्न किया होगा, समझा होगा. मैंने समझाया वो, ठीक है. तो अगर आपने ध्यान से समझा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर नहीं समझा है तो वापस एक बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना. और हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखेंगे. तब तक आप अपना होमवर्क करते रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर का खाना नहीं खाइए, और अपने दिन की शुभ शुरुआत भगवान जी की प्रार्थना से कीजिए. हम मिलेंगे बाद में नेक्स्ट सेशन में. तब तक बाय. हैव अ नाइस